श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा कहिए जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। વિલાપ કર્યો છે રાગ રામગરી જુઓ રે બહેની હું હાય હાય કરતી હીણું ત્રાયે ત્રાયે બાલોજી રે બિસડતા કાં જીવ કડકા ન થાય ફીટ ફીટ રે બુડા તું શબ્દ કેમ આવે મુખબાન બાય ન આવ્યો તે દિશનો તની બેલા ચાલતા મારા પ્રાણ કેમ બલી જીવ્યા મારી એ કહેતા વચન સમૂલીન ચૂતાની જ્યાં થકી ઉત્પન્ન શ્રી ધનીજી શિરાબતા કેમ રહી બાચા અંગા ઉખડીને પડ્યા દંતડા કનગાએ મુખ ભંગા કેમ ન સુનિયા રે એ વચન તે શ્રવણા તે સુન હતા સુનિયા વચન ધની તણા એ રે લવો સ્મતા તુને દાદ ન આવી એને રે લવે આગી નની ચાલામાં કાન ઝંપાવી નિબલ નયના રે ભૂણા તમે દ્રષ્ટે નવ જોયું બાલોજી રે બિચડતા તમે લોહી નવ રોયું શું રે થયું તમને તમે લોહી નવ રડિયા એ બોબ્ર દેખી તરકીના નીકળી ન પડ્યા એ વચન તણી તુને નાસિકા ના આવી રે પ્રેમલા બાલયો રે બિચડતા તે નવો ડાક્યો રે બલ્લા ફીટ ફીટ રે પ્રેમલા નાસિકા કેમ રહી એ નિજ જાતા અંગથી બિછડી નવો ગઈ પ્રેમ તની રે ધણી ગોલી બાંધતા કામ તે અમા શું ના હતા રે ગુણ તમે ચતુર સુજાન ફીટ ફીટ રે ગુણ તમને એ અંગના પ્રેમ કામ નવલાદ્યો બ્ર રે બિછડતા તની શ્રીધામ એ બડી બાત તે કેમ સહી અંગ ઊભું કેમ રહ્યું રોમ રોમ એ તે કાં ગલી નવો પડ્યો અગ્નદી ન ઉઠી રે કાલ જડે રે ઝાલ એ બ્રહલય અંગમાં ઊભું રહ્યું રે ચંદાલ હાથ પગ સૌ અંગના સર્વે રે સંધાન જુજવા કાનવ થયા રે આઠમ તે ભાન ભાણ વચન રે કાંઈ આવાલા ને ન કહેવાય તની તની રે જોત કોટ બ્રહ્માંડે ન સમાયે જોત ને પ્રગટ થઈ ચાલી ન રહે બિના ઠામ બ્રહ્માંડ અખંડો ના નિસરી જય પહોંચી ઘર શ્રી ધામ એ જોત જોશે રે સખી સકલ મલિને સાથ વચન એ પ્રગટ થાશે રાસની પ્રકાશ નસો ન ત્રુતિ રે તું કેમ રહી તન તુચા રૂપ રંગ લઈ કાન થઈ તિલ તિલ જે વડા પુરજા હાડ માંસ રે તમે કેમ રહ્યા રે વેલા કાનસ ક્યાં રે મારું લોહી તેની વેલા ફીટ ફીટ રે તું વળી હોડી કેમ રહી તું સાજી સાકલા ન થઈ રે હેરન ઘણા બચે લાગી અંગ મારા રે અવાગી તમે કાં ભૂકો નવો થયા એ ધની રે ચાલતા અધર મી કાં ઉભા રહ્યા કેમ ને રહ્યું રે મારા અંગમાં એ તું બલ તે જીવને નવો કાંડ્યો રે નિધ જાતા ને ચલા ન્યા ચલ રે નિધ જાતા તું ક્યાં હતી રે બુધા તીક તીક રે ચંદાલની તું કાં થઈ રે અસુદા જ્ઞાન બુણાય ને સમે નવ કીધો અજબાસ એવી સિમુને બોલવી રે મેં કીધો તારો વિશ્વાસ ગુણને સગલા મળી રે તમે મોસું થયા વલા મારો ધની રે ચાલંતા તમે કાં નવો થયા સવલા હે બાલો રે ચાલંતા ગુણ અટંગ માયે કામ ન આવ્યા રે તમે મારે અવસર ક્યાં હે ઠીક ઠીક પડો રે તમને સુના હતી ઓળખાન જીવનું ધન રે જાતા તમે કાન ઓ કાને રે પ્રાણ કાય ન નિસર્યો રે
બુડા જીવ એની બાર પીઠ પીતરે કાલી અવસર સુકે રે ચંદાલ નીચા અધરમી જીવ રે એવો અધર્મ કોઈ કરે શ્રી ધનીધામ ચાલ્યા પછી આકાર કોણ ડરે કે પેરે કરું જીવ તુને તું ચૂક્યો રે ચંદાલ જો તુને આગીન ન ઉઠી રે કાન જંપાવ્યો ઝાલ ભૈરવનો જંપાવ્યો રે જીવ એવો થયો કાંકાએર તરવારીતના ટાચ્યો રે અંગ ધની જાતા સુખ સાયર ગુણધની જાતા રે જીવ તારો ક્યાં હતો કાલ કરમ કોદિયો દેડ તું થયો રે ચંદાલ હવે કેટલું કહું રે દુસ્તા તે નવો ગ્રહો વાસો અવસર ચૂક્યો રે ગણો ઘડ્યો રે વરાસો ખરી રે બસ્તરનું તુને હટું રે તેજ તે કાનવો રાખ્યું રે સામધાની સોયે જા એ ધની રે બિછડતા કેમ રહ્યું રે અંગ પાસ કાય ન સમાણું રે તું તેજ જોત પ્રકાશ હવે હું કેમ કરું રે વચન બાની દાની કિહા બાલીઓ બોલાવી કરી હું પાછું રહી અહીંયા હવે કિહા રે સુની સરે એ વચન બલવ શ્રીમુખ બાની રે મુને થઈ છે રે દુર્લભ તારતમ તના બિચાર કૌન કરી દેશે એ ત કે મને સાંભળું રે બ્રજરાસ અકનના વિવેકા ઉત્તમ આદિકાને ભલી ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત કોણને વિચારશે તન વિના કરી ખાંતા 14 વર્ષ લગે નિષ્ઠા બંડ ભાગવત કૌન લેશે એ અનુસાર કાઢી અમને તથકીન કૌન દેશે દૂધ પાણીના બિછોડા કૌન કરીને દેશે હવે આવે બત માહિતી બાય ગ્રહીને કૌન લેશે 108 રે કહીએ છે પખ તે જુજો બાબર નવી અમને કોણ દેશે રે સુખા નરસૈયા કબીર ને જાતિ વચન કૌન લેશે એના અર્થ અમને કૌન કરી દેશે માને પ્રલય હતે કોઈ કરે રે અભ્યાસ સર્વે વિદ્યા શાસ્ત્રની લે કરી વિશ્વાસ તોય કેમ ન આવ્યો રે વિદ્યાએ એવી રે ભાન તે ખીન માયક દઈ કરી ભાલો કરત ચતુર સુજાન અબુજ તાલીને હવે કોણ કરશે બચી ખીના ને ચલ નિધ નિજ દામની કોણ દેશે તત ખીના કીજી વળીને એ નિધા બીજો કોણ દેશે જીવન સગા જાની આંસુવાલી કોણ કહે છે અનેક પેરે અમને એમ કોણ રે પ્રીસવ છે દેખાડવા રામટ એની પેરે દિય કોણ ડરે છે આ બ્રહ્માંડને રામટ બીજો કોણ કહે છે એ રામટ દેખાડી એ થકી અલગ રાખી કોણ લેશે બીજા બીજાની રે સરસા હવે ક્યાં રે સાંભળશું યારે બાની વિના હવે આપણને કેમ ગલશું ગલ્યા પછી બીજો ગાબા ઘાટ કેમ કરી થશે બીજા ઘાટ વિના મોહ જલ કેમ રે મુકાશે 5 પછી સત્ય અને બીજો કોનો ઓલો ખાવશે વચન ધની ના પગે એ સવલો કેમ થશે જીવતા ગુણ તે હવે કેની પેરે મરશે દુઃખી તાલીને સુખી બીજો કોણ કરશે શ્રવણાને અંગ ઇન્દ્રી તાલશે કોણ અબલા એ ધની બિના બીજો કોણ કરી દેશે સબલા આટમને પર આટમ બેલા કોણ કરશે આ ભવ સાગર માહિતી બીજો કોણ લઈ તરશે નખત્રળ પુર તણાતા બાય ગ્રહીને કોણ વાલશે એવા રે લાર અમારા હવે બીજો કોણ પાલશે સાગર જીવ ખોલી કરી વાસના કોણ પર ખસે ખોલતા લાધે વાસના એમ કોણ રે હરખશે હવે કોણ ને રે વર્ણવશે બ્રજરાસને શ્રીધામ એ સુખ દઈ બાજશે કોણ મારા જીવની હામ જીવને જગાવી એ નિધા બીજો કોણ દેશે શ્રવણા ઉગાડી જીવના એમ વચન કોણ કહેશે દેહ ચલ નિધ દઈ કરી સુત જીવ કોણ જગાડ હશે બ્રહ્માંડ ફોડીને શ્રીધામ ઉપરવાડે કોણ પહોંચાડશે ઉપરવાડે બાત ખીન માએ
એ ઘર કેમ રે લેવાય છે, એ બોઈયા બિના રે આબોમાં કેમ રે મેલાશે. અચેત અબુધ સાધને કોણ સુધારી લેશે, જીવનના સગા જાની કરી એની રબીદ કોણ દેશે. શું તેજ સત સાગર માહિતી તનાવ તું અવિચલ, વહી ગયું રે પુર લહેર આવતી છોલ. એ નિરા બહેની રે હું બેજી રે ખોઈ, પરમ મુનિ જ્ઞાન સૂતો તેને હું રહી રે જોઈ. એ બડું અંધારું ઠાટા તું કેમ રહી રે જોઈ, પીઠ પીઠ રે તું પાપની એની રે કેમ રહી ખોઈ. ધીક ધીક રે જીવડા તે ખોઈ નિદાતે, ધામ ધની ધામ ચાલતા તું ના ચાલ્યો રે સાથે. કૂતી ના આવી રે ભૂડી તું બોલાવા વિચારતા, હાજી ન જાય રે જીવ એ વચન સાંભળતા. પીઠ પીઠ રે બુડા જીવ એ તે કીધું રે શું, એ બ્રહદે કી આંગથી ઉડીને પડ્યો રે તું. હાય હાય કરું રે બહેની બાલે દીડો મુને છે, ભસમ ન થયો રે મારા જીવ શું દેહ. ઘણું એ કહ્યું રે બહેની મને મૂળ સ્નેહ, પણ હું નિગમી બેઠી રે નિરાદા વિજય. મને ઘણું એ જણાવ્યું નિરાદય ચાલંત એકાંત, પણ મેં કોઈ નિર પાપની ગ્રહી બેઠી હું શાંત. હવે શબ્દાતીત નિરા કોણ દેશે રે બાન, વર્તમાન તની રે કોણ કેસે જાન. ઉઠતા બેસતા રમતા ખબર કોણ દેશે, મન પડારા રે સખી શૃંગાર કોણ વરણવશે. વસ્ત્ર ભૂષણ તની રે વિગત કોણ લેશે, એ ધની વિના રે એ સુખ હવે બીજો કોણ દેશે. મૂળ તારતમ તની કોણ પૃથ્વશે રે બધાઈ, ધામ ધની સુમુને કોણ કરી દેશે રે સગાઈ. મૂળ તારતમ તના કોણ કરશે વિચાર, આશા મૂકી હતી ઇન્દ્રાવતી મારા પ્રાણના આધાર. મારા પ્રાણના આધાર મૂળ તારતમ તના કોણ કરશે વિચાર, આશા મૂકી હતી શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારા પ્રાણના આધાર. મારા પ્રાણના આધાર. ચોપાઈ 77 પ્રકરણ 5 ચોપાઈ 185. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की जय. प्रकाश गुजराती को 5वां प्रकरण छाया हिंदी. इंद्रावती कहती हैं, हे सखियों मेरे दशा देखो, मैं किस प्रकार हाय हाय करती हुई धामधनी के विरह के कारण त्राही त्राही पुकारती घूम रही हूँ. सदगुरु धाम चले गए तो उनके वियोग में मेरा जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया. हे शब्द तुझे भी बारंबार धिक्कार है, इस प्रकार की वाणी मुख से कैसे निकल रही है. धामधनी के दिशा की ओर से वायु नहीं आई, अन्यथा मेरे प्राण भी धामधनी के साथ चल देते. सदगुरु चले गए इस प्रकार के वचनों का उच्चारण करने के लिए मेरी जीवा क्यों हिलती है, कट क्यों न गई. उसे तो जड़ से उखड़ जाना चाहिए था जहाँ से वह उत्पन्न हुई है. धामधनी सदगुरु के परम धाम पधारते पर भी हे वाणी तू मेरे शरीर में कैसे रह गई. उनके वियोग के दुख के कारण ये दांत भी क्यों नहीं उखड़ गए. वहाँ पर हथौड़े के प्रहार होने पर भी वे टूट क्यों नहीं गए. हे कान तूने वे विरह वेदना के क्यों नहीं सुने. क्या तूने कभी धामधनी के वचन नहीं सुने थे. जिस वाणी में उन्हें उपदेश दिया था उसे तूने सुना है अथवा नहीं. एकमात्र शब्द सुनते ही तुझे आग क्यों नहीं लग गई. सदगुरु के धाम गमन की बात सुनते मात्र से भी तू अग्नि की ज्वाला में क्यों नहीं कूद पड़ा. हे पापी निर्मल नेत्र, क्या तूने यह दृश्य दिखाई नहीं दिया. जब धामधनी इस संसार से अलग हुए तो उनके विजयोग में तुझसे रक्त की धारा असुर के स्थान पर क्यों नहीं बह गई. हे आंखें, तुम्हें ऐसा क्या हो गया था कि तुम रक्त बहाकर रो नहीं पड़ी. ऐसा दुखदायी विरह देखकर उसी क्षण हे आंखें तुम बाहर क्यों नहीं निकल पड़ी. हे नासिका, उनके वचनों की प्रेममय सुगंधि का अनुभव क्या तुझे नहीं हुआ.
प्रियतम सदगुरु से बिछोड़ते समय तूने अपना जोर क्यों नहीं दिखाया? सुगंधि का अनुभव करने वाली हेनासी का तुझे बारंबार धिक्कार है। सदगुरु रूपी धन से अलग होने पर तू भी शरीर से अलग क्यों नहीं हुई? प्रेम के मूर्त स्वरूप धामधनी प्रेम की गोलियां बनाकर तुम सबको देते थे। हे गुण अंग इंद्रियों, क्या तुम में ही सब गुण थे और उनमें कोई गुण नहीं थे, जिसके कारण तुम उनके जाने पर भी यहाँ रह गई? तुम क्यों स्वभावतः चतुर और सुज्ञ हो? हे मेरे गुण अंग इंद्रियों, तुम्हें भी बारंबार धिक्कार है। प्रेम स्वरूप धामधनी के अलग होने पर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें उनकी विरह वेदना का क्या अनुभव भी नहीं हुआ? इतनी बड़ी आपत्ति को तू कैसे सहन कर पाया? अरे तेरे अंग अब भी कैसे टिके हुए हैं? शरीर के रोम रोम कटकर क्यों नहीं गिर गए? तेरे शरीर में अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हुई? तेरे कलेजे तक उनकी ज्वाला क्यों नहीं पहुंच पाई? हे चंडाल शरीर, तू इतना बड़ा विरह लेकर किस प्रकार खड़ा रहा? हाथ पांव और शरीर के सब जोड़ इस समाचार को सुनते ही क्यों अलग नहीं हुए? सदगुरु रूपी सूर्य की आस्था होने पर सब अंग अलग क्यों नहीं हुए? सदगुरु को सूर्य की उपमा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो मात्र पृथ्वी पर ही होता है, परंतु सदगुरु के तारतम्य की ज्योति तो करोड़ों ब्रह्मांडों में भी समा नहीं सकती। सदगुरु के तारतम्य ज्ञान की अखंड ज्योति प्रकट हुई। अब तो यह अखंड स्थान के अतिरिक्त कहीं भी रुक नहीं सकती। अखंड ब्रह्मांडों ब्रज और रास में पहुंचकर वहां से आगे बढ़कर वह अक्षरधाम से भी आगे अपने मूल घर ब्रह्म धाम पहुंच गई है। ऐसा कि तारतम्य ज्ञान की इस ज्योति को सब सुंदर साथ मिलकर देखोगे। तारतम्य के इन वचनों के द्वारा रास और प्रकाश के वचन प्रकट होंगे। अपने अंगों को धिकारते हुए पुनः कहती है, मेरे शरीर की नसें टूट क्यों नहीं गई? हे त्वचा, तू शरीर के ऊपर चिपके क्यों रह गई? शरीर के रूप और रंग को लेकर तुम्हारे तिल के समान टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? हे मेरे शरीर के हड्डियों और मज्जा, तुम भी शरीर के साथ क्यों चिपके रहे? मेरे रक्त उसी समय सूख क्यों नहीं गया? हे पापी खोपड़ी, तुमसे धिक्कार है। अरे दुष्टा, तू शरीर में ज्योति की क्यों चिपकी है? तू टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गई? कृपा रूपी निहाई हिरण और वचन रूपी हथौड़ों के बीच आने पर भी कैसे बच पाई? तुक कर तू चूर चूर क्यों नहीं हो गई? हे मेरे भाग्यहीन अंगा, तू टुकड़े टुकड़े होकर धूल के रूप में क्यों नहीं बदल गया? सदगुरु धनी के धाम गमन के बाद तू अधर्मी बनकर क्यों खड़ा रहा? हे बल, तू भी शरीर में क्यों टिका हुआ है? सदगुरु रूपी अखंड निधि धन धाम जाते समय तूने जीव को बाहर क्यों नहीं निकाला? हे बुद्धि, सदगुरु रूपी अखंड अविनाशी धन के चले जाने पर भी तू कहाँ छिप कर बैठी थी? हे चंडालिनी, तुझे बारंबार धिक्कार है, तू क्यों बेशुद्ध बनी रही? हे तुच्छ ज्ञान, तूने भी उस समय प्रकाश नहीं किया, उजाला क्यों नहीं किया? मैंने तो तुम पर विश्वास किया था, फिर भी मुझे बुलाकर धोखा क्यों दिया? हे गुण और इंद्रियां, तुम सब मिलकर मेरे विरुद्ध क्यों हो गए? मेरे धामधनी के चले जाते हुए तुम सरल क्यों नहीं बने, अर्थात मेरा काम क्यों नहीं किया? हे गुण अंग इंद्रियां, सदगुरु के धाम गमन के समय तो तुम सब शरीर में ही थे, समय आने पर तुम मेरे किसी काम नहीं आए। हे गुण अंग इंद्रियां, तुम्हें बारंबार धिक्कार है। क्या तुम सबको धामधनी सदगुरु का परिचय प्राप्त नहीं था? जीव के आधार रूपी सदगुरु जब धाम जा रहे थे तो हमारे शरीर से प्राण को तुमने बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? हे पापी जीव, तू उस समय शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल गया? हे काल, तुझे भी धिक्कार है, क्योंकि तू चंडाल बनकर ऐसा अवसर खो बैठा।
हे नीच अधर्मी जीव, क्या कोई ऐसा अधर्म करता है? धामधनी सदगुरु के चले जाने के बाद कौन ऐसा अधर्मी होगा जो शरीर को पकड़े बैठेगा? हे जीव, तुझे क्या कहूँ, तेरे लिए मैं क्या उपाय करूँ? तू तो चंडाल बनकर सब कुछ भूल गया। तेरे हृदय में विराग्नि पैदा नहीं हुई। उस विरह की ज्वाला में कूदकर तू विनष्ट क्यों नहीं हुआ? हे जीव, तूने पर्वत के छलांग भैरव झांप क्यों नहीं लगाया? तू ऐसा कायर क्यों बन गया? जब सुख के सागर के समान सदगुरु धनी धाम जा रहे थे तो तूने अपने अंग तलवार से क्यों नहीं छिले? हे जीव, ऐसे सर्वगुण संपन्न धनी के धाम गमन के समय तुझे काल ने ग्रस्त क्यों नहीं किया? तू अपने कर्मों से कोरी, नीच तथा चंडाल बन गया। हे दुष्ट जीव, अब तुझे कितना कहूँ, तू धनी जी के धाम जाते हुए उनके पीछे क्यों नहीं गया? तू ऐसे सुंदर अमूल्य अवसर को खो चुका है और सब पश्चाताप करने के लिए इस संसार में पड़ा हुआ है। सदगुरु रूपी अखंड वस्तु का प्रकाश तेरे अंदर विद्यमान था, तथापि तूने धामधनी के साथ प्रेम संबंध स्थापित नहीं किया। ऐसे धामधनी संसार में विलग हुए तो तेरे अंग शरीर के साथ क्यों चिपके रहे? सदगुरु के तेज और ज्योति में तू समाहित क्यों नहीं हो गया? अब मैं क्या करूं? सदगुरु धनी के बानी और वचन कहाँ से सुनूं? प्रियतम सदगुरु के पार्थिव शरीर को समाधि स्थल पहुंचाकर उनसे बिछड़ी हुई मैं यहाँ रह गई। मेरे प्राण प्रिय सदगुरु के बानी अब मैं कहाँ सुन पाऊंगी? उनके मुखारविंद से प्रवाहित बानी और वचन सुनना मेरे लिए दुर्लभ हो चुका है। अब मुझे विचार, विवेक, स्नेह और प्रेम से भरकर तारतम्य ज्ञान कौन देगा? अखंड ब्रज तथा रास के ये विवेक पूर्ण वचन कैसे सुनेंगे? उत्तम प्रकार की चमत्कारिक लीला और उत्तम दृष्टांत देकर चाहपूर्वक ये पवित्र विचार धामधनी के बिना अब कौन सुनाएगा? 14 वर्षों तक नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करके उसका सार तत्व निकाल कर हमें सदगुरु महाराज के बिना कौन देगा? दूध और पानी, ब्रह्म और माया को अलग अलग कर इन दोनों के भेद का निरूपण सदगुरु के बिना कौन समझाएगा? अब इस माया के विकट प्रवाह से हाथ पकड़कर कौन बाहर निकालेगा? जिन्हें भक्ति उपासना के 108 पक्ष सोपान कहा गया है, उन सब का अलग अलग वर्णन करके अब हम सब सुंदर साथ को सुख कौन देगा? नरसिंह मेहता, संत कबीर तथा जात भगत के वचनों की साक्षी देकर हमें कौन समझाएगा तथा उन वचनों का स्पष्टीकरण करके उनके खरे अर्थ हमें कौन समझाएगा? महाप्रलय तक यदि कोई विद्याभ्यास करे, 14 विद्या और 6 शास्त्रों की सब कलाओं का श्रद्धापूर्वक अध्ययन कर ले, फिर भी ये सब विद्याएं मिलकर सदगुरु धनी के वचनों के समान नहीं हो सकती। सदगुरु महाराज क्षण मात्र में ही इन वचनों के भाव हमसे जागृत करके हम सबको चतुर और सुज्ञ बना देते हैं। अब उस अज्ञानता को हटाकर अब हमें विलक्षण बुद्धि कौन प्रदान करेगा? अखंड अविनाशी परम धाम की निधि तारतम्य ज्ञान हमें तत्क्षण कौन देगा? कभी कभी नाराज होकर डांट फटकार कर सदगुरु धनी के बिना अन्य कौन हमें अखंड तारतम्य ज्ञान देगा? आत्मा का मूल संबंध मानकर आंखों से आंसू बहाकर हमें कौन प्रबोध करेगा? भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान देकर हमें इस प्रकार कौन समझाएगा? इस संसार का झूठा खेल दिखाने के लिए इस झूठे संसार में इस प्रकार मानव देह कौन धारण करेगा? इस ब्रह्मांड के खेल का वर्णन सदगुरु के बिना अन्य कौन करेगा? यह मायावी खेल दिखाकर उसके बीच रहते हुए भी हमें उससे अलग कौन करेगा? विभिन्न प्रकार की चर्चा अब हम कहाँ सुन पाएंगे? सदगुरु के वाणी के बिना अब हमारे कठोर हृदय कैसे द्रवित होंगे? द्रवित हुए बिना दूसरा आकार कैसे प्राप्त होगा? अर्थात अहंकार को निर्मूल किए बिना
प्रेम कैसे प्राप्त होगा? दूसरा आकार ग्रहण कर बिना हम मोह जल के कैसे छोड़ सकेंगे? 5 तत्व तथा 25 प्रकृति, इन सब की पहचान सदगुरु धनी के बिना हम कौन करेगा? धामधनी के वचनों का आश्रय लिए बिना ये सब किस प्रकार सीधे समझ में आएंगे? अब हमारे शरीर में जीवित गुण अंग इंद्रियां कैसे मृत्यु को प्राप्त होंगी? अर्थात ये इंद्रियां शारीरिक भावों के प्रति मृत प्राय होकर परमात्मा की ओर कैसे जाएंगी? अखंड सुख देने वाले सदगुरु के बिना दूसरा कौन हमें दुख से दूर कर सुखी करेगा? हमारे कान और अन्य अंग इंद्रियां जो मायावी वृत्ति में फंसी हुई है, उन्हें झूठे मार्ग से हटाकर सीधे मार्ग पर धामधनी के बिना अन्य कौन ला सकेगा? आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक संबंधों को समझाकर कौन उसे एक रूप करेगा? इस संसार सागर के पार ले जाकर कौन परम धाम के दर्शन करवाएगा? जिस प्रकार प्रचंड प्रभाव में मात्र उंगली डालने पर भी पूरा हाथ बहने लगता है, उसी प्रकार काम, क्रोध, मोहादि तूफानों की लहरें अपने प्रचंड प्रभाव में सुरता आत्मा को खींच ले जाती है। इस परिस्थिति में सदगुरु के बिना हाथ पकड़कर कौन पार करा सकता है? सदगुरु की अनुपस्थिति में ऐसा लाड और प्यार अन्य कौन देगा? इस मोह सागर में पड़ी हुई आत्मा को ढूंढकर प्रेम धाम की वासनाओं का परिचय कौन कराएगा? इस प्रकार ब्रह्मात्मा को ढूंढते ढूंढते उनकी प्राप्ति होने पर अब कौन इस प्रकार प्रसन्न होंगे? ब्रजरास तथा प्रेम धाम की अखंड लीलाओं का वर्णन अब कौन करेगा? इन लीलाओं के अखंड सुख देकर सदगुरु के बिना हमारी इच्छाएं कौन पूरा करेगा, कौन पूर्ण करेगा? हमारी जीवात्मा को जागृत करके परम धाम की संपत्ति तारतम ज्ञान हमें कौन देगा? आत्मा के कान खोलकर इस प्रकार के वचन कौन सुनाएगा? तारतम ज्ञान रूपी अखंड अविनाशी धन देकर सुप्त जीवात्मा को कौन जागृत करेगा? इस 14 लोक वाले ब्रह्मांड को बैठकर ऊंचे विहंगम मार्ग द्वारा प्रेम धाम कौन पहुंचाएगा? इस ब्रह्मांड से ऊपर अष्टावर्ण, ज्योतिषरों, महतत्व, निराकार आदि श्रेष्ठ स्थानों का मार्ग दिखाकर एक क्षण में ही विहंगम मार्ग द्वारा मूल वतन परम धाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस संसार की संपूर्ण स्थिति के जानकर मार्गदर्शक सदगुरु धनी के बिना यह मायावी संसार कैसे छोड़ जा सकेगा? अज्ञानी नासमझ सुंदर साथ को सत्य मार्ग दिखाकर कौन सुधारेगा? आत्मा के वास्तविक संबंध की पहचान करवाकर तारतम रूपी संपत्ति दूसरा कौन देगा? स्वतः प्रकाशमान तेजोमय अखंड परम धाम रूपी सतसागर के बीच में इस तारतम ज्ञान रूपी अखंड अविनाशी धन निरंतर आ रहा था। अब सागर के लहरों का वह प्रभाव भी सदगुरु के साथ चला गया। हे बहन सुंदर सास जी, निष्क्रिय रहने के कारण में इस प्रकार का अखंड ज्ञान को खो गई थी, क्योंकि अविद्या और अज्ञान का नशा मुझ पर चढ़ा हुआ था, इसीलिए मैं देखती ही रह गई। इतना भयंकर अंधकार छा गया और तू कैसे देखता रहा? ये पापी जीवात्मा, तुझे बारंबार धिक्कार है, तूने ऐसे सदगुरु रूपी धन की कैसे खो दिया? हे जीव, तुझे बारंबार धिक्कार है कि तूने हस्तगत की हुई अखंड संपत्ति को खो दिया। सदगुरु धनी के धामगमन के समय तू उनके साथ क्यों नहीं गया? हे पापी मौत, प्रियतम धनी के वियोग के समय तूने नहीं दिखाई दी। इतने कठोर वचन सुनते पर भी यह जीव शरीर को छोड़कर क्यों नहीं चला जाता? हे पापी जीव, तुझे बारंबार धिक्कार है, तूने यह क्या किया? ऐसे कठोर विरह का दुख देखने पर भी तू मेरे अंग से उठकर क्यों नहीं चला गया? हे बहन सुंदर सास जी, अब मैं पश्चाताप कर रही हूँ। सदगुरु धनी के मुझे वियोग दिया। सदगुरु के देह के साथ साथ जीव सहित मेरे देह जलकर भस्म क्यों नहीं हो गई? हे बहन, धनी जी ने मुझे बहुत कहा, क्योंकि मेरा
उनके साथ मूल संबंध है, परंतु मैं तो हाथ में प्राप्त धनी रूपी संपत्ति खो गई थी। धनी जी ने मुझे बहुत जानकारियां दी। धाम गमन के समय एकांत में बुलाकर मुझे अखंड धन दिया, पर मैं पापिनी उस अखंड धन को खोकर शांत और निश्चित होकर बैठी रही। और परम धाम की शब्दातीत निधि को वचनों द्वारा सदगुरु के बिना कौन देगा? परम धाम तथा वर्तमान समय की जानकारी हमें कौन देगा? परम धाम में श्री राजा जी के साथ हम सब सुंदर साथ इस प्रकार उठते बैठते और खेलते थे, इसकी जानकारी अब कौन देगा? तीसरे प्रहर में जब सखियां वन में जाती थी, उस समय के श्रृंगार का वर्णन कौन करेगा? परम धाम के वस्त्र भूषणों का विवरण कौन देगा? धामधनी के बिना यह सुख अन्य कौन दे सकेगा? परम धाम का मूल रहस्य तथा तारतम्य ज्ञान महत्व कौन समझाएगा? तथा धामधनी के साथ मेरा संबंध कौन स्मरण कराएगा? मूल घर श्री प्रेम धाम के मूल रहस्य तारतम्य के वचनों पर अब कौन विचार करेगा? हे मेरे प्राणाधार सदगुरु, इंद्रावती को यह पूरी आशा थी कि आप ही इसे पूर्ण करेंगे। इंद्रावती को यह पूरी आशा थी कि आप ही इसे पूर्ण करेंगे। मूल घर श्री प्रेम धाम के मूल रहस्य प्रेम धाम के वचनों पर अब कौन विचार करेगा? हे मेरे प्राणाधार सदगुरु, श्री इंद्रावती को यह पूरी आशा थी कि आप ही इसे पूर्ण करेंगे। इंद्रावती को यह पूरी आशा थी कि आप ही इसे पूर्ण करेंगे। चौपाई 77 प्रकरण 5 चौपाई 185। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाषा सिंधी जाति। मुझी सयल रे सैन वड़ा मुगारे मुन सुजाता सी परी हल्या कार्यो गणु करे सजन आया मुगरे मुना सुजाता सेन गालियों के आऊं हेत में कहानी भाती भाती जावे ना मुँह के जा गारन आवई जे आई पस साथ ताखरे बपोरे से जसो झरे मुके थे रात सजन आया न सुजातमा मुके चे आओ गण बेना कन आखियों फूती हूँ व्यापुत्याई जाने ना साजन बिया नी करी हने आओ करिया किं अवसर ब्यो मुझे हथ मंजा हने रुअन रात दिया पीरी हल्या प्रभात में उठी साबेरी किं बन जाइया बालाओ जे हुंड जागा सवेरी जीवा मुई जो जे टड़े जागे ताऊ सारा बन जाइया किं हुंडा साथना सड़िया सजने आदिले रे माया थेनी हने दिसुने दोए नियारिया ताजर बरा तांगा मायले हेरियो मेरा जेड़ियो ब्योमते पेरा नाये मागा माये
तुम्हारियों जरा जो जबा व्यापारी परि जा पूरा एका बेर न भए जे सुखा करे हेता दिसे दुखे संधा मुरा हिका कोरा अंधारो ब्यो अंके न सूझे त्रेवो एड़ो नाय मंदा पिरी आया मुके पारा उतारना एड़ी धारा मंजा मुकारण सैला मुआजी इन में बिदाऊं पान कुकड़ियों करे करे निटाउती बिया निरबान हाने किंकारिया केड़ा पंजा केड़ मुझो आने अंडा पिरी न पसा की जे मु कारण आया माया मंजा जे मु कारण आया माया मंजा हाने किंकारिया केड़ा बंजा केड़ मुझो आने अंडा पिरी न पसांकी जे मु कारण आया माया मंजा जे मु कारण आया माया मंजा चौपाई 12 प्रकरण 6 चौपाई 197। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती भाषा सिंधी जाति 6ठों प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरी सखी धनी साजन मेरे घर आए थे, मैं उन्हें पहचान न सकी। धनी ने काफी समय तक पुकारा और चले गए। धनी साजन मेरे घर आए, मैं उन्हें पहचान न पाई। उन्होंने भांति भांति के वचनों से मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातें की। मुझ पर अज्ञान और माया का नशा चढ़ा हुआ था। उसे तुम सब सुंदर सा देखो। मध्याह्न के सूर्य के समान सदगुरु के उपस्थिति में भी अज्ञान अंधकार ने मुझे घेर लिया। सदगुरु आए और मैं उन्हें पहचान न सकी। उन्होंने मुझे अनेक प्रकार के वचन कहे, मानो मेरे कान और नेत्र फूटे हुए थे। इसके साथ साथ मेरे हृदय के नेत्र भी फूटे हुए थे। धनी जी मेरे पास से निकलकर धाम पधार गए। अब मैं क्या करूं? प्राप्त अवसर हाथ से निकल गया। अब तो रात दिन रोना और विरागनी में जलना ही बचा। सदगुरु धनी तो प्रातः काल जल्दी ही धाम चले गए और मैं तो देर से जागृत हुई। यदि मैं प्रातःकाल जल्दी ही जग गई होती तो प्रियतम धनी मुझे छोड़कर कैसे जा पाते। मेरे जीव यदि उसी समय जागृत हो उठता तो यह अवसर हाथ से कैसे छूट जाता। मैं सदगुरु धनी का साथ नहीं छोड़ती, किंतु माया के प्रभाव ने बीच में ही रुकावट डाल दी। अब 10 दिशाओं में देखा करती हूँ, चारों ओर मोह माँ सागर का अथाह जल भरा हुआ देखती हूँ। बीच बीच में मेरू के समान काम क्रोधादि लहरें उठती हैं। दूसरा, मछली के तैरने के लिए भी मार्ग नहीं रहता, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता। मोह जल में सत रज और तम रूपी भंवर उठ रहे हैं। साथ ही मोह और अहंकार रूपी लहरें भी उठती हैं। एक क्षण भी सुख से नहीं बैठा जा सकता। इसलिए ऐसा लगता है कि यह संसार ही दुख की जड़ है। एक और इस संसार में मोह माया रूपी अंधकार छाया हुआ है। दूसरा, आंखों की संदर्भ का सच्चा मार्ग भी दिखाई नहीं देता। तीसरा, हृदय का भी कोई ठिकाना नहीं है, अर्थात हृदय भी स्थिर नहीं रह पाता। प्रियतम धनी मुझे पार करने के लिए इस मोहजल के प्रवाह के बीच आए थे। ऐसा कि मेरे ही कारण प्रियतम धनी ने स्वयं को इस मोह सागर में डाला, अर्थात माया भी संसार में शरीर धारण किया। वे पुकार पुकार कर जगाने का प्रयत्न करते हुए
उठकर चले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरे लिए कहाँ स्थान है। प्रियतम धनी को इन आंखों से नहीं देखती, वे तो मेरे लिए इस मायावी संसार में आए थे, वे तो मेरे लिए इस मायावी संसार में आए थे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरे लिए कहाँ स्थान है। प्रियतम धनी को इन आंखों से नहीं देखती, वे मेरे लिए इस मायावी संसार में आए थे, वे तो मेरे लिए इस मायावी संसार में आए थे। चौपाई 12 प्रकरण 6 चौपाई 197। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बीजी बिलामणि सजन बिया मुजानी करी मुता सुजाता न सारे रे मुके चियाऊं कनवे पुकारे रे न किन्नार मुदिला बिचारे रे हे सजन हने कितनारिया आदिरे पिरिये पान से जाके आऊं से दे समारिया साथा पान जे काजे हीन माया में किए भी जाऊं आप ही का गुण संभारा जे आदिरेता पन लबे सा गुण संभारिंदे सजने आजा कुन उड़े अरबा आदिरे सजन साने हलया खाणु ठाएड़ियों पाए खुई मुहा जो जीड़ियो जे अजंखन उगाड़े रे परि परि मुके चियाऊं मुके सलेठा से बेना अंकड़िए पानी बराऊं आऊं टोए न खना मटने न अंकड़ियों भरे असासे बांझले के आऊं गाला फिट फिट रे मुजाजी दुआ आजा जे जोई हाल हने आऊं किंकारिया मुजानी के आवाला के मोगिनी रे आदियों आऊं करिया आसे गाला आदि भाई नी सुन गालड़ी मुके रुअन रात दिया पानी ने पीरी गिनी बेया हने फड़का मची दिया बिन चाई चाई बलहो मुआज बर्या करा मने रे हलया मुझे दी संदे आद्यु कार्यों गानु करे रे पीरी मुजानी हालया आऊं किंतु आज ब्यारे सजन बेरन बिसरे मुके लगा तरारी जागारे मुके लगा तरारी जागारे पीरी मुजानी हलाया आऊं किंतु आज ब्यारे सजन बिन न बिसरे मुके लगा तरारी जागारे मुके लगा तरारी जागारे चौपाई 10 प्रकरण 7 चौपाई 207। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
प्रकाश गुजराती 7वें प्रकरण को हिंदी छाया। धनी जी मेरे हाथ से निकल गए, मैंने उनका परिचय भी प्राप्त नहीं किया। अत्यधिक पुकारते हुए उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार से उपदेश दिए, परंतु मैंने हृदय में इस प्रकार विचार नहीं किया। अब उन धनी को मैं कहाँ देखूं? हे बहन, हम सब सुंदर साथ के लिए प्रियतम धनी ने जो कुछ किया उसे मैं सहज भाव से याद करती हूँ, अर्थात अनायास ही उसका स्मरण हो आता है। हम सब के लिए प्रियतम धनी ने किस प्रकार अपने आप को इस मायावी संसार में डाला। धनी जी के असीम गुणों में से यदि एकाध गुण को भी याद किया जाए तो हे बहन, उनसे मिलाप हो सकता है, किंतु प्रियतम धनी के अनेक गुणों का स्मरण करते हुए अब भी यह जीवात्मा शरीर से क्यों नहीं निकलता है? हे बहन, धामधनी प्रेम धाम चले गए, उन्होंने हमें कई आवाजें दी, मेरे जीवात्मा को आग क्यों नहीं लग जाती कि वह अब भी आंखें खोल कर नहीं देखती? धनी जी ने मुझे विभिन्न प्रकार से उपदेश दिए, उन वचनों का स्मरण होते ही अब मन में शूल सा उठता है। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भी समझाया, फिर भी मैंने आंखें उठकर भी नहीं देखा। सदगुरु ने रो रो कर मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ मूल संबंध की बात की। ये मेरा जीव, तुझे धिक्कार है, अभी भी तेरा वही हाल है। अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या हाल होगा? ये बोल, क्या मोह लेकर तुम्हारे साथ बातें करूं? हे बहन सुंदर साथ, मेरी बातों सुनो, अब मेरे लिए रात दिन रोना ही बचा है। प्रेम रूपी जल तो प्रियतम धनी अपने साथ ले गए, अब तो बिना पानी की मछली की भांति मुझे तड़पना ही है। अखंड ज्ञान तारतम के वचन कहते कहते मेरे प्रिय सदगुरु परम धाम की ओर चले गए। ये बहन, मेरे आंखों के सामने धनी जी पुकारते हुए चले गए, मेरे प्रियतम धनी चले गए। ऐसा मैं इस जीवा द्वारा कैसे कहूँ? सदगुरु धनी को एक क्षण के लिए भी मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि उनकी वाणी वचनों ने मेरे हृदय पर तलवार की चोट की तरह किए हैं। मेरे प्रियतम धनी चले गए, ऐसे मैं इस जीवा द्वारा कैसे कहूँ? सदगुरु धनी को एक क्षण के लिए भी मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि उनकी वाणी और वचनों ने मेरे हृदय पर तलवार की चोट की तरह प्रहार किए हैं। चौपाई 10 प्रकरण 7 चौपाई 2 से 7। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खुई सा परदेव ले आड़ो, जीत सांगाए नाए सी परी, पीरी पुकारनी हालया, मुझे माया मत बे फिरी, मुझो जीव बड़े कोरा करे, मैं मीठो पाता हूँ, सजन सांडो सुराई मारे, मंजा जीवा करे रे धाऊं, जेरो नी लागो जरा ताई, जीवा करे मंजा, भलाए सांडनी ब्रहाई मारे,
मुके दिनाऊं दूर न दांजा मुपिरियन से जाके आदि एड़ी न करे ब्यो को ये सजन आया मुकरन आऊं आंखन खनिया तो ये किंकरिया आऊं गालड़ी मथा उकनिया की मोआ मुहता एड़ी थे खाल लाइया चोतीनो तारारे गिनी तन ताचिया हड़े निकरिया बोरा पेले निकाला उबती लाइया जीवा कथा जोरा पाले तरारी कटारी मुके बदे बिदाऊं झुका मुआंगा मुई दूजन थिया जीवा करे रे मंजकूका सजन सुजानी करे कदे समी सैन किए मंगाल रे ए दुख आऊं किं चलिंदी मुजाहानी के हवाल रे सुरतो एजा खनुजा सुआमना जेतो दिन रे दांजा सुरे निगनु सुखाईसा पेई पचारे हने मांजा सुरतो एजा हेड़ा सुखाला तातो सुके हुंदो केड़ो सुखा पनमुना सुजाता मुजासी परी आऊं जुरा तेजे दुखा अंग मुझे अनाये तरारी सुख करे करिया जोरो कोरे बंजाजी दिशा माथा ततो लाइम सजने थोरा हदे निकरिया आंगे ठड़ी मुझो मानी होमिया मांजा नारियर हंदे लाए रखा मठा मुखे टोए न पंजरे दांजा जरो जरो मुझे जीवा संदो मुखे ब्रह पाटाऊं बादा इंद्रावती चोए चेताए मुके माया मंजानी कादा मुके माया मंजानी कादा जर जर मुझे जीवा संद मुके ब्रह पाटाऊं बादा श्रीन्द्रावती चोए चेताए मुके माया मंजानी कादा मुके माया मंजानी कादा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 13 प्रकरण 8 चौपाई 220 प्रकाश गुजराती 8औं प्रकरण को बीजी बिलामनी भन्ने जोन प्रकरण छ त्यसको हिंदी छाया। धनी जी मेरे हाथ से निकल गए, मैंने उनका ठीक से परिचय भी प्राप्त नहीं किया। अत्यधिक पुकारते हुए उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार से उपदेश दिए।
परंतु मैंने हृदय में इस प्रकार विचार नहीं किया। अब उन धनी को मैं कहाँ देखूं? हे बहन, हम सब सुंदर साथ के लिए प्रियतम धनी ने जो कुछ किया उसे मैं सहज भाव से याद करती हूँ, अर्थात अनायास ही उसका स्मरण हो आता है। हम सब के लिए प्रियतम धनी ने किस प्रकार अपने आप को इस मायावी संसार में डाला। धनी जी के असीम गुणों में से यदि एकाध गुण को भी याद किया जाए तो हे बहन, उससे मिलाप हो सकता है, किंतु प्रियतम धनी के अनेकों गुण का स्मरण करते हुए अब भी यह जीवात्मा शरीर से क्यों नहीं निकलता है? हे बहन, धामधनी प्रेम धाम चले गए, उन्होंने हमें कई आवाजें दी, मेरे जीवात्मा को आग क्यों नहीं लग जाती कि वह अब भी आंखें खोलकर नहीं देखती। धनी जी ने मुझे विभिन्न प्रकार से उपदेश दिए। उन वचनों का स्मरण होते ही अब मन में शूल सा उठता है। उन्हें अश्रुपूर्ण नेत्रों से भी समझाया, फिर भी मैंने आंखें उठाकर भी नहीं देखा। सदगुरु ने रो रो कर मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ मूल संबंध की बातें की। हे मेरे जीव, तुझे धिक्कार है, अभी भी तेरा वही हाल है। अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या हाल होगा? हे बहन, क्या मुँह लेकर तुम्हारे साथ बातें करूं? हे बहन सुंदर साथ, मेरी साथ सुनो। अब मेरे लिए रात दिन रोना ही बचा है। प्रेम रूपी जल तो प्रियतम धनी अपने साथ ले गए, अब तो बिना पानी की मछली की भांति मुझे तड़पना ही है। अखंड ज्ञान तारतम के वचन कहते कहते मेरे प्रिय सदगुरु परम धाम की ओर चले गए। हे बहन, मेरे आंखों के सामने धनी जी पुकारते हुए चले गए। मेरे प्रियतम धनी चले गए, ऐसा मैं इस जीवा द्वारा कैसे कहूँ? सदगुरु धनी को एक क्षण के लिए भी मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि उनकी वाणी और वचनों ने मेरे हृदय पर तलवार की चोट की तरह प्रहार किए हैं। क्योंकि उनके वाणी और वचनों ने मेरे हृदय पर तलवार की चोट की तरह प्रहार किए हैं। मेरे प्रियतम धनी चले गए, ऐसे मैं इस जीवा द्वारा कैसे कहूँ? सदगुरु धनी को एक क्षण के लिए भी मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि उनकी वाणी और वचनों ने मेरे हृदय पर तलवार की चोट की तरह प्रहार किए हैं। चौपाई 10 प्रकरण 7, चौपाई 2 से 7। प्रकाश गुजराती 8वें प्रकरण को हिंदी छाया। उस संसार रूपी विदेश में आग लग जाए, जहाँ प्रियतम धनी की कोई पहचान नहीं है। धनी जी स्वयं पुकार पुकार कर चले गए, किंतु मेरे बुद्धि माया की ओर मुड़ गई। मेरे इस जीव को काट कर टुकड़े करूं और उससे नमक भर दूं, इस प्रकार धनी जी की विरह वेदना मुझे सता रही है। इस बीच मेरे प्राण पुकार रहे हैं। जब आग जलती है तो उससे ज्वालाएं निकलती है, उसी प्रकार जीव भी विरह वेदना रूपी अग्नि की ज्वाला में सिरक सिरक कर रोता हुआ फिर बीच में पुकार उठता है। धामधनी का विरहजन्य दुख इस प्रकार मुझे सता रहा है। उसी विरह ने मुझे अत्यधिक दुख दिया है। हे बहन, मेरे प्रियतम धनी के साथ जो व्यवहार किया है वैसा अन्य कोई न करे। धनी इस मायावी संसार में मेरे लिए आए, फिर भी मैंने आंखें उठाकर उनकी ओर देखा तक नहीं। अब मैं बात कैसे करूंगी? सिर कैसे उठाऊंगी? मुझसे ऐसे भूल हुई है जिससे मन में अच्छा होती है कि शरीर की नख से लेकर मस्तक तक की सब त्वचा उड़ेड़ कर फेंक दूं। अच्छा होती है कि तलवार लेकर शरीर को छील डालूं और हड्डियां को तोड़कर धूल की तरह बना दूं। इससे पहले तो मेरे शरीर की त्वचा उलटी दिशा में पैरों की ओर से निकालूं। इस प्रकार प्राणों को बलपूर्वक निकाल लूं। भाला, तलवार तथा कटारी द्वारा शरीर को काटकर उसे हवन विरह की अग्नि में होम दूं, क्योंकि मेरे शरीर के ये अंग ही मेरे लिए दुखदायी बन गए हैं। इसी के कारण
जीवात्मा अंदर बैठकर पुकार रही है। धनी जी को पहचान कर भी मैंने कभी भी उनके साथ सीधे ढंग से बात नहीं की है। इस दुखदायी वेदना को मैं कैसे सहूं? अब मेरा क्या दशा होगी? हे धनी जी, आपकी यह विरह वेदना अत्यंत ही सुंदर और सुखदायी है। वियोग का यह दुख भी अपने ही दिया है। वास्तविक सुख से भी यह अधिक सुखदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस दुख रूपी आग में तप कर मैं परिपक्व हो गई हूँ। यदि आपका विरह दुख भी इतना आनंददायी और सुखदायी है तो आपके सानिध्य में कितना सुख, कितना आनंद होता होगा। मैंने मेरे प्रियतम धनी की पूरी पहचान प्राप्त नहीं की, इसी दुख के कारण मैं सुख रही हूँ। मैं शरीर के अंगों को तलवार से काटकर टुकड़े टुकड़े कर अग्नि में डाल दूं और अपने सिर को आपकी ओर निछावर कर दूं, फिर भी धामधनी की प्राप्ति के लिए यह बलिदान अल्प ही माना जाएगा। हड्डियों के टुकड़ों की सिगड़ी अथवा बेदी बनाऊं और उस अग्नि में मेरे मांस को हव्य के रूप में डालूं। इस विरह यज्ञ में नारियल के स्थान पर मेरे मस्तक उतार कर डाल दूं, फिर भी आपके वियोग का दुख दूर नहीं होता। मैं मेरे प्राणों के छोटे छोटे टुकड़े करके विरह की अग्नि में डालने को तैयार हूँ। इंद्रावती इस प्रकार सबको सावधान करके कहती है कि हे धनी, मुझे माया से मुक्त दिलाइए, मुझे माया से मुक्त दिलाइए। मैं मेरे प्राणों के छोटे छोटे टुकड़े करके विरह की अग्नि में डालने को तैयार हूँ। श्री इंद्रावती इस प्रकार सबको सावधान करके कहती है कि हे धनी, मुझे माया से मुक्त दिलाइए, हे धनी, मुझे माया से मुक्त दिलाइए। चौपाई 13 प्रकरण 8 चौपाई 2 से 20। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप प्रकाश गुजराती ग्रन्थको 5औं प्रकरण। विलाप। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, हे सखी हो, मेरो दशा हेर, म कसरी हाय हाय गर्दै विरहको कारण त्राई त्राई हुँदै घुमिरहेकी छु। सद्गुरु धाम गएपछि उहाँको वियोगमा मेरो जीव किन टुक्रा टुक्रा भएन? हे शब्द, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। यस प्रकारका बानी मुखबाट कसरी निस्किरहेका छन्? धामधनीको दिशातिरबाट पनि हावा आएन, नत्र मेरो प्राण पनि धामधनीका साथै जाने थियो। सद्गुरु जानुभयो। यस प्रकारको वचन उच्चारण गर्दा मेरो जिब्रो किन खस्दैन, किन काटिँदैन? त्यो त जरै समेत चुडिनु पर्थ्यो, जहाँबाट त्यो निस्केको छ। सद्गुरु परम नाम जान्दा पनि हे बोली, त शरीरमा कसरी बसिस? उहाँको वियोग दुःखमा यी दाँत किन झरेनन्? मुखमा खन प्रहार हुँदा पनि ती किन भाँचिएनन्? हे काम, तैँले ती विरह वेदनाका कुरा किन सुनिनस्? के तैँले कहिले धामधनीका कुरा सुनेको थिएनस्? जुन बानीमा उहाँले उपदेश दिनुभएको थियो त्यसलाई सुनेको थिएनस्? एक मात्र शब्द सुन्ने बित्तिकै किन तँलाई आगो लागेन? सद्गुरुको धाम गमनका कुरा सुन्ने बित्तिकै तँ किन आगोको ज्वालामा कुदिनस्? हे पापी निर्बल नेत्र, तैँले त्यो दृश्य देखिनस् जब धामधनी यस संसारबाट अलग हुनुभयो। त्यस बेला उहाँको वियोगमा तँबाट रगतको धारा किन बगेन? हे आँखा, तँलाई यस्तो के भयो? तँ किन रगत बगाएर रोइनस्? यस्तो दुःखमय विरह देखेर पनि किन त्यसै बेला आँखा बाहिर निस्केनन्? हे नाक, उहाँको प्रेममय वचनको सुगन्धको अनुभव तँलाई भएन? प्रियतम सद्गुरु जाने बेला तैँले किन जोर देखाइनस्? सुगन्धको अनुभव गर्ने हे नाक, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। सद्गुरु रूपी धन अलग हुँदा पनि तँ शरीरबाट किन अलग भइनस्? प्रेमका मूर्त स्वरूप धामधनीले प्रेमको गोली बनाएर तिमीहरूलाई दिनुहुन्थ्यो। हे गुण,
17,000 अङ्ग मन चित्त बुद्धि र अहंकार इन्द्रियहरू हो। के तिमीहरूमा ती गुण थिएनन्? तिमीहरू त स्वभावतः चलाक थियौ। हे मेरा गुण अङ्ग र इन्द्रिय हो, तिमीहरूलाई बारम्बार धिक्कार छ। प्रेम स्वरूप धाम धनी जाने बेलामा पनि तिमीहरूलाई केही भएन। तिमीहरूलाई उहाँको विरह वेदनाको पनि अनुभव भएन। यति ठुलो आपत्ति तिमीहरूले कसरी सहन गर्यौ? अरे तिम्रो शरीर अझैसम्म पनि कसरी रहेको छ? शरीरका रौँ काटिएर किन झरेनन्? तेरो शरीरमा आगो किन प्रज्वलित भएन? तेरो कलेजोसम्म त्यसको ज्वाला किन पुगेन? चण्डाल शरीर त यति विरह लिएर कसरी बसिस? हात पाउ र शरीरका सबै जोर्नी यो समाचार सुन्ने बित्तिकै किन अलग भएनन्? सद्गुरु रूपी सूर्य अस्त भएपछि सबै अङ्ग किन अलग भएनन्? सद्गुरुलाई सूर्यको उपमा पनि दिन सकिन्न। सद्गुरुको तारतमको ज्योति त करोडौं ब्रह्माण्डमा पनि असीमित हुन्छ। उहाँको तारतम ज्ञानको ज्योति प्रकट भयो। अब यो अखण्ड स्थानका अतिरिक्त कतै रोकिँदैन। अखण्ड ब्रह्माण्डमा पुगेर त्यहाँबाट अघि बढी अक्षरधाम भन्दा पनि अगाडि मूल घर परमधाममा पुग्यो। हे सुन्दर साथजी, तारतम ज्ञानको यस ज्योतिलाई सबै सुन्दर साथले हेर्नेछन्। तारतमको यस वचनद्वारा रास र प्रकाशका वचन प्रकट हुनेछन्। आफ्नो शरीरलाई धिक्कार्दै फेरि भन्दछिन्, मेरो शरीरका नसाहरू किन छिनिएनन्? हे तोता, त शरीरमाथि कसरी तासिएर बसिस? शरीरको रूप र रंग ग्रहण गरेर तिल समान किन टुक्रा टुक्रा भइनस्? हे मेरा शरीरका हाड र मजाहरू, तिमीहरू पनि शरीरसँग कसरी तासिएर बस्यौ? मेरो रगत त्यसै बेला किन सुकेन? हे खोपडी, तँलाई धिक्कार छ। अरे दुष्ट, त शरीरमा जस्ताको तस्तै तासिएर बसिस, त टुक्रा टुक्रा किन भएनस्? दया रूपी ठेला र वचन रूपी कणका बीचमा पर्दा पनि कसरी बचिस? ठुलो पिठो किन भइनस्? हे मेरा भाग्यहीन शरीर, त टुक्रा टुक्रा भएर ठुलो किन भइनस्? सद्गुरुको धाम गमनपछि त अधर्मी बनेर किन उभिएर बसिस? हे बल, त पनि शरीरमा किन टिकेर बसेको छस्? सद्गुरु रूपी अखण्ड धाम जाने बेलामा तैँले जीवलाई किन बाहिर निकालिनस्? हे बुद्धि, सद्गुरु रूपी अखण्ड अविनाशी धन गएपछि पनि त कहाँ लुकेर बसिस? हे चण्डाल, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। त किन बेसुद्धीमा बसिस? हे तुच्छ ज्ञान, तैँले पनि त्यस बेला किन प्रकाश पारिनस्? मैले त तँमाथि विश्वास गरेको थिएँ, फेरि पनि मलाई बोलाएर धोका किन दिइस्? हे गुण र इन्द्रिय हो, तिमीहरू सबै मिलेर मेरा विरुद्ध किन लाग्यौ? मेरा धाम जानी जाने बेलामा तिमीहरू किन सरल भएनौ? हे गुण अङ्ग र इन्द्रिय हो, सद्गुरु धाम गमनको समयमा तिमीहरू शरीरमै थियौ। आवश्यकता परेको बेलामा तिमीहरू मेरो काममा किन लागेनौ? हे गुण अङ्ग र इन्द्रिय हो, तिमीहरूलाई बारम्बार धिक्कार छ। के तिमीहरूले धामधनीको परिचय पाएका थिएनौ? जीवनका आधार रूप सद्गुरु जब धाम जाँदै हुनुहुन्थ्यो तब मेरो शरीरबाट प्राणलाई तिमीहरूले किन बाहिर निकालेनौ? हे पापी जीव, त त्यस बेला शरीरबाट बाहिर किन निक्लिनस्? हे काल, तँलाई धिक्कार छ। किनभने त चण्डाल बनेर यस्तो मौकाबाट किन चुकिस? हे नीच अधर्मी जीव, के कसैले यस्तो अधर्म गर्दछ? धाम जाने सद्गुरु गएपछि कुन यस्तो अधर्मी शरीरलाई समातेर बसिरहला? हे जीव, तँलाई के भनौं? तेरा लागि म के उपाय गरौं? त चण्डाल बनेर सबै भुलिस। तेरो हृदयमा विरह अग्नि किन उत्पन्न भएन? यस विरह अग्निको ज्वालामा कुदेर त किन विनष्ट भइनस्? हे जीव, त पर्वतबाट किन पालिनस्? त यस्तो कायर किन भइस? जब आनन्द सागर समान सद्गुरु धाम जाँदै हुनुहुन्थ्यो तब तैँले आफ्नो शरीर तरवारले किन ताचिनस्? हे जीव, यस्ता सर्वगुण सम्पन्न सद्गुरुको धाम गमनमा तँलाई कालले किन ग्रस्त गरेन? त आफ्नो कर्मले कोडी नीच र चण्डाल बनिस। हे दुष्ट जीव, अब तँलाई कति भनौं? त सद्गुरु धाम जाने बेलामा उहाँको पछि किन लागिनस्? तैँले यस्तो सुन्दर मौका गुमाइस र अब पश्चाताप गर्नका लागि यस संसारमा बसेको छस्।
सद्गुरु रूपी अखण्ड वस्तुको प्रकाश तँभित्र थियो तापनि तैँले सद्गुरुका साथ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गरिनस्। यस्ता मालिक संसारबाट अलग हुँदा तेरा शरीरसँग कसरी टाँसिएर बसिस्? सद्गुरुको तेज र ज्योतिमा त किन प्रवेश गरिनस्? अब म के गरौँ? सद्गुरुका बानी र वचन कहाँबाट सुनौँ? प्रियतम सद्गुरुको पार्थिव शरीरलाई समाधि स्थल पुर्याएर उहाँबाट अलग भएर म यहाँ बसेँ। मेरा प्राण प्रिय सद्गुरुका बानी अब मैले कहाँ सुन्न पाउनु? उहाँका मुखा र बिन्दबाट निस्केका बानी र वचन अब दुर्लभ भयो। अब मलाई स्नेहले तारतमको विवेक कसले दिनेछ? अखण्ड ब्रज तथा राजका यी विवेकपूर्ण वचन कसरी सुनाउला? उत्तम प्रकारका महत्वपूर्ण लीला र उत्तम दृष्टान्त दिएर रुचिपूर्वक यी पवित्र विचार प्रभु बिना कसले सुनाउला? 14 वर्षसम्म नियमपूर्वक श्रीमद् भागवत श्रवण गरेर त्यसको सार तत्व निकालेर हामीलाई सद्गुरु बिना कसले सुनाउला? दूध र पानीलाई अलग अलग गरेर दुवैको भेद निरूपण सद्गुरु बिना कसले सम्झाउला? अब यस मायाको विकट प्रभावबाट हात समातेर कसले बाहिर निकाल्ला? भक्तिको 108 पक्ष भनिएको छ, त्यसको अलग अलग वर्णन गरेर अब हामी सुन्दर साथलाई कसले आनन्द देला? नरसिंह मेहता, सन्त कबीर तथा जात भक्तका बानीको साक्षी दिएर हामीले कसले सम्झाउला? त्यस बानीको स्पष्टीकरण गरेर साँचो अर्थ हामीलाई कसले सम्झाउला? महाप्रलयसम्म यदि कसैले विद्याको अभ्यास गरी 14 विद्या र 6 शास्त्रका सबै कलाहरू श्रद्धापूर्वक अध्ययन गरे पनि फेरि पनि यी सबै विद्याहरू मिलेर सद्गुरुका बानी समान हुन सक्दैनन्। सद्गुरु क्षण मात्रमा नै यी बानीका भाव हामीमा जागृत गराएर हामी सबैलाई चतुर विज्ञ बनाइदिनुहुन्थ्यो। अज्ञान हटाएर अब हामीलाई विलक्षण बुद्धि कसले प्रदान गर्नेछ? अखण्ड अविनाशी परमधामको धन तारतम ज्ञान हामीलाई यस बेला कसले देला? कहिले काहीँ रिसाएर फटकारेर सद्गुरु बिना अरू कसले हामीलाई अखण्ड तारतम ज्ञान देला? आत्माको मूल सम्बन्ध मानेर आँखाबाट आँसु बगाएर हामीलाई कसले शिक्षा देला? अनेक प्रकारले ज्ञान प्रदान गरेर हामीलाई यसरी कसले सम्झाउला? यस संसारको झुटो खेल देखाउनका लागि यस नश्वर संसारमा यसरी मानव देह कसले धारण गर्ला? यस ब्रह्माण्डका खेलको वर्णन सद्गुरु बिना अरू कसले गर्ला? यस मायामय खेल देखाएर त्यसका बीच रही हामीलाई त्यसबाट कसले अलग गर्ला? अनेक प्रकारका चर्चा अब हामीले कहाँ सुन्न पाउला? सद्गुरुका बानी बिना अब हाम्रो कठोर हृदय कसरी द्रवित होला? द्रवित नभई अर्को घात कसरी बन्दछ? अर्को आकार ग्रहण नगरी हामी मोहजललाई कसरी छोड्न सक्दछौँ? 5 तत्व र 25 प्रकृति यी सबैको परिचय सद्गुरु बिना अरू कसले गराउला? उहाँका बानीको आश्रय नलिकन यी सबै कसरी सिधा होलान्? यी सबै कसरी सिधा होलान्? अब हाम्रा शरीरका जीवित गुण अङ्ग र इन्द्रियहरू कसरी मर्नेछन्? अखण्ड आनन्द दिने सद्गुरु बिना अरू कसले हामीलाई दुःखबाट मुक्त गराउनेछ? हाम्रा कान र अरू अङ्ग इन्द्रियहरू मायाको वृत्तिमा लागेका छन्। तिनलाई नश्वर बाटोबाट मोडेर सिधा सत्य बाटोतिर उहाँ बिना कसले लगाउला? आत्मा र परमात्माको पारस्परिक सम्बन्धलाई सम्झाएर कसले एकरूप गर्नेछ? यस संसार सागर पार लगेर कसले परम धामको दर्शन गराउला? जसरी प्रचण्ड प्रवाहमा औँला मात्र पानीमा डुबाउँदा पुरै मानिसलाई तानेर लैजान्छ, त्यसै गरी यस माया मोहको प्रवाहमा सद्गुरु बिना कसले हात समातेर पार गराउनेछ? सद्गुरु बिना स्नेह कसले दिनेछ? यस मोहसागरमा परेका आत्माहरूलाई खोजेर परमधामको वासनाको परिचय कसले देला? यसरी ब्रह्मात्माहरूलाई खोज्दै उनीहरूलाई भेटाएर को प्रसन्न होला? ब्रज राज तथा परमधामको अखण्ड लीलाको वर्णन कसले गर्ला? यी लीलाहरूको अखण्ड आनन्द दिएर सद्गुरु बिना कसले हाम्रो इच्छा पूर्ण गरिदेला? हाम्रो जीवात्माहरूलाई जागृत गरेर परमधामको धन हामीहरूलाई कसले देला? आत्माका कान खोलेर यसरी हामीलाई यस प्रकार
यस प्रकारका बानी कसले सुनाउला? तारतम्य ज्ञान रूपी अखण्ड अविनाशी धन दिएर सुप्त जीवात्मालाई कसले जागृत गर्ला? यस 14 लोकले युक्त ब्रह्माण्डलाई छेडेर उच्च आकाशी मार्गद्वारा परमधाममा कसले पुर्याउला? यस ब्रह्माण्डमाथिको बाटो छेनैमा पार गरेर परमधामको बाटो कसरी लिइएला? सद्गुरु मार्गदर्शक बिना यस भूमिमा कसरी छोडिएला? अज्ञानी अबुझ सुन्दर साथलाई कसले सुधार्ला? आत्माको सम्बन्धी मानेर जागृत बुद्धिको धन कसले देला? स्वत प्रकाशित तेजमय अखण्ड परमधामको सत्सागरबाट सद्गुरु मार्फत निरन्तर धन आइरहेको थियो। अब सागरका ती लहर पनि गए। हे बहिनी, निष्क्रिय रहनाले मैले यस्तो धन गुमाएँ, किनभने अविद्या र अज्ञानका कारण मलाई नशा लागेको थियो। त्यसकारण हेरेको हेरे भए। यति भयंकर अन्धकार छाएको थियो र त हेरेर मात्र बसिस्। हे पापी, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। यस्तो धन कसरी गुमाइस्? हे जीव, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। तैँले आत्मा आएको अखण्ड धनलाई गुमाइस्। सद्गुरु धाम गमनको बेला उहाँसँग किन गइनस्? हे पापी मृत्यु प्रियतम प्रभुको वियोगको बेला त किन देखिनस्? यस्तो कठोर बानी सुनेर पनि यो जीवलाई शरीरबाट छुट्याएर किन लगिनस्? हे पापी जीव, तँलाई बारम्बार धिक्कार छ। तैँले यो के गरिस्? यस्तो कठोर विरहको दुःख हेरेर पनि त मेरो शरीरबाट किन गइनस्? हे बहिनी, अब म पश्चाताप गरिरहेकी छु। सद्गुरुले मलाई वियोग दिनुभयो। उहाँको देहका साथ जीव सहित मेरो शरीर भस्म किन भएन? हे बहिनी, सद्गुरुले मलाई धेरै भन्नुभयो, किनभने मेरो उहाँसँग मूल सम्बन्ध थियो। तर म त आत्मा आएको धन पनि गुमाएर बसे। सद्गुरुले मलाई धेरै जानकारी दिनुभएको थियो। धाम गमनको बेला एकान्तमा बोलाएर मलाई अखण्ड धन दिनुभयो। तर म पापी त्यस अखण्ड धन गुमाएर शान्त र निश्चिन्त भई बसे। अब परमधामको शब्दार्थी धन वाणीद्वारा सद्गुरु बिना कसले देला? परमधाम र वर्तमान समयको जानकारी हामीलाई कसले देला? परमधाममा श्री राजाजीका साथ हामी सबै सुन्दर साथ यसरी सँगै उठ्ने, बस्ने र खेल्ने गर्दथ्यौं। यसको जानकारी अब कसले देला? तेस्रो प्रहरमा जब सखीहरू वनमा जान्थे, त्यस बेलाको श्रृंगारको वर्णन कसले गरिदेला? परमधामका वस्त्र र गहनाहरूको विवरण कसले देला? प्रभु बिना यो आनन्दहरू कसले देला? परमधामको मूल रहस्य र तारतम्य ज्ञानको महत्व कसले सम्झाउला? धामधनीसँग मेरो सम्बन्धको स्मरण कसले गरी? धामधनीसँगको मेरो सम्बन्धको स्मरण कसले दिला होला? मूल घर परमधामको मूल रहस्य। मूल घर परमधामको मूल रहस्य। तारतम्य बानीमाथि अब कसले विचार गर्ला? हे मेरा प्राणदार सद्गुरु, इन्द्रावतीको यस्तो आशा थियो, त्यसलाई हजुरले नै पूर्ण गर्नुहुनेछ। मूल घर परमधामको मूल रहस्य। तारतम्य बानीमाथि अब कसले विचार गर्ला? हे मेरा प्राणदार सद्गुरु, इन्द्रावतीको यस्तो आशा थियो, त्यसलाई हजुरले नै पूर्ण गर्नुहुनेछ। चौपाई 77 प्रकरण 5 चौपाई 185। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए।
श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप प्रकाश गुजराती ग्रन्थको 6औं प्रकरण भाषा सिन्धी जातिको नेपाली स्वरूप। हे मेरा सखी, प्रभु मेरा घरमा जानुभएको थियो, मैले उहाँलाई चिन्न सकिन। प्रभुले धेरै समयसम्म बोलाउनु भयो र जानुभयो। प्रभु मेरा घर आउनुभयो, मैले उहाँलाई चिन्न सकिन। उहाँले अनेक प्रकारका बानीले मसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो, म माथि अज्ञान र मायाको नशा चढेको थियो। त्यसलाई तपाईँ सबै सुन्दर साथ हेर्नुहोस्। मध्याह्नको सूर्य बिचमा सिधा आएको बेलामा मलाई रात जस्तो भयो। प्रभु मेरा घर आउनुभयो, मैले उहाँलाई चिन्न सकिन। उहाँले मलाई अनेक प्रकारका कुरा गर्नुभयो, तर मेरा कान र आँखा फुटेका थिए। त्यसका साथै मेरा हृदयका आँखा पनि फुटेका थिए। प्रभु म नजिक आएर धाम जानुभयो। अब म के गरौँ? पाएको मौका हातबाट गुम्यो। अब त रात दिन रुनु र विरहको आगोमा जल्नु सिवाय केही छैन। सद्गुरु प्रातःकाल चाँडै धाम जानुभयो र म त अबेर जागे। यदि म प्रातःकाल चाँडै जागेको भए प्रभुले मलाई छोडेर कसरी जानुहुन्थ्यो? मेरो जीव यदि त्यस बेला जागृत भएको भए यो मौका हातबाट कसरी घुम्थ्यो? म सद्गुरुको सङ्गत छोड्ने थिएन, तर मायाको प्रभावले बिचमा नै अवरोध पार्यो। अब दसैँ दिशातिर हेर्दछु, जहाँ म सागरको अथवा पानी भरिएको छ। बिचमा पहाड समानका लहर उड्दछ। अर्को माछालाई पनि खेल्ने स्थान देखिँदैन। बिचमा भुमरी उठेर पानीलाई अलग अलग पारिदिन्छ। अर्को नाना तरहका लहर उड्दछ। एक क्षण पनि सुखले काम गर्न दिँदैन। यस्तो लाग्दछ यो संसार नै दुःखको मूल हो। एकातिर यस संसारमा मोह माया रूपी अन्धकार छाएको छ, अर्कोतिर आँखाद्वारा सद्धर्मको बाटो देखिन्न। तेस्रो हृदयको कतैतिर सीमा देखिँदैन। हृदयले कतैतिर सीमा देख्दैन। प्रियतम प्रभु मलाई पार लगाउनका लागि यस मोहजलको प्रभावमा आउनुभएको थियो। हे साथी, मेरै कारण प्रभुले स्वयंलाई यस मोह सागरमा हाल्नुभयो। उहाँ बोलाइकन जागृत गराउने प्रयत्न गर्दा गर्दै बिचैमा उठेर धाम जानुभयो। अब म के गरौँ? कहाँ जाउँ? अब मेरा लागि स्थान कहाँ छ? प्रभुलाई यी आँखाले देखिन्न। उहाँ त मेरा लागि यस मायामय संसारमा आउनु भएको थियो। अब म के गरौँ? कहाँ जाउँ? अब मेरा लागि स्थान कहाँ छ? प्रभुलाई यी आँखाले देखिन्न। उहाँ त मेरा लागि यस मायामय संसारमा आउनु भएको थियो। चौपाई 12 प्रकरण 6 चौपाई 197। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप प्रकाश गुजराती ग्रन्थको 7औं प्रकरण अर्को पुकार। प्रभु मेरा हातबाट जानुभयो, मैले उहाँको राम्रो परिचय पाइन। अति धेरै करार उहाँले मलाई विभिन्न प्रकारले उपदेश दिनुभयो, तर मैले हृदयमा त्यस कुराको विचार गरिन। अब म उहाँलाई कहाँ हेरौँ? हे बहिनी, हामी सबै सुन्दर साथका लागि प्रियतम सद्गुरुले जे गर्नुभयो त्यो मैले सहज रूपले याद गरेको छु। हामी सबैका लागि प्रियतम सद्गुरुले कुनै प्रकारले स्वयंलाई यस संसारमा अवतरित गराउनुभयो। उहाँको एक गुणमध्ये आधा गुणको परिचय, उहाँको एक गुणमध्ये आधा गुणको पनि स्मरण गर्यौं भने
हे बहिनी, उहाँसँग मिलाप हुन सक्दछ, तर सद्गुरुका अनेक गुणहरू स्मरण गरेर पनि जीवात्मा यस शरीरबाट किन निस्कँदैन? हे बहिनी, सद्गुरु त परमधाम जानुभयो, उहाँले हामीलाई धेरै बोलाउनु भयो। आँखा खोलेर नहेर्ने यस मेरो जीवात्मालाई किन आगो लाग्दैन? अब म कुरा कसरी गरौँला? मबाट यस्तो भूल भयो, मनमा यस्तो लाग्दछ पाउको नङदेखि शीर्षमाका सबै छाला निकालेर फ्याँकिदिउँ। तरवारले शरीरलाई ताछौँ र हड्डीहरूलाई पिँधेर धुलो पारौँ। यो भन्दा पहिले शरीरका छालालाई उल्टो पारेर पाउदेखि निकालौँ। यसरी बल गरेर प्राणलाई निकालौँ। भाला, तरवार तथा छुरीले शरीरलाई काटेर त्यसलाई हवन गरिदिउँ, किनभने मेरो शरीरका यी अङ्ग मेरा लागि नै दुःखदायी बनेका छन्। त्यसै कारण जीवात्मा भित्र बसेर बिन्ती गरिरहेको छ। सद्गुरुलाई चिनेर पनि मैले कहिले उहाँसँग कुरा गरिन। यस दुःखद कुरालाई म कसरी सहूँ? अब मेरो के दशा हुने हो? हे प्रभु, हजुरको यो विरह वेदना अति नै सुन्दर र आनन्ददायी छ। वियोगको यो दुःख पनि हजुरले नै दिनुभएको हो। वास्तविक आनन्द भन्दा पनि यो धेरै आनन्ददायक सिद्ध भएको छ, किनभने यस दुःख रूपी आगोमा बलेर म परिपक्व भएकी छु। यदि हजुरको वियोग दुःख पनि यति सुखदायक छ भने हजुरको संयोग त कति सुखदायक होला। मैले मेरा सद्गुरुको पूरा परिचय पाइन, त्यसैले म सुखिरहेकी छु। म आफ्नो शरीरका अङ्ग तरवारले काटी टुक्रा टुक्रा पारेर आगोमा हाल्छु र शरीरलाई हजुरमा समर्पित गर्दछु। फेरि पनि सद्गुरुको प्राप्तिका लागि यो समर्पण कम नै हुनेछ। हड्डीहरू मिलाएर मक्कल बनाऊ र त्यस आगोमा मेरा मासुलाई हवन गरौँ। त्यस विरह यज्ञमा नरिवलको स्थानमा मेरो टाउको ल्याएर फुटाऊ, तापनि हजुरको वियोगको दुःख हट्न सक्दैन। म मेरो प्राणलाई विभाजन गरेर विरह अग्निमा हाल्न तयार छु। इन्द्रावती यसरी सबैलाई होशियार गराएर भन्दछिन्, हे प्रभु, मलाई मायाबाट मुक्ति प्रदान गर्नुहोस्। म मेरो प्राणलाई विभाजन गरेर विरह अग्निमा हाल्न तयार छु। इन्द्रावती यसरी सबैलाई होशियार गराएर भन्दछिन्, हे प्रभु, मलाई मायाबाट मुक्ति प्रदान गर्नुहोस्। मलाई मायाबाट मुक्ति प्रदान गर्नुहोस्। चौपाई 13, प्रकरण 8, चौपाई 220। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।